हमें यहाँ पे अपने गांव बुढ़ाबाना में जाने में बहुत दिक्कत होती है। अब यहाँ बुढ़ाबाना जाने का एक ही रास्ता है, किश्ती, और जब ये पुल बन जाएगा हमें बहुत राहत मिलेगी। जब हमें पानी नहीं होता, यहाँ पे कच्चा पुल बना हुआ है, हम उससे जाते हैं। अब तो खतरा भी लगता है? खतरा लगता है जी। कोई पेड़ी चलती है, हाँ जी। ये नाव जो चलती है इसी से आते जाते हाँ हैं? जी, हम जब इस नाव से आते हैं, जब भी स्कूल जाते हैं तो ये पुल बन जाएगा तो आपको मतलब राहत मिल जाएगी। हम फरवाई कलां स्कूल में जाते हैं और हमें हमारे गांव में जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। घग्गर नदी जब आती है तो बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, उसका बहाव बहुत तेज़ होता है, जिसके कारण बीच में से जो किश्ती जाती है वो भी नहीं इधर से जा पाती फरवाई को। तो इसके लिए हमें छुट्टियां भी करनी पड़ जाती हैं, तो हमारी पढ़ाई भी ख़राब होती है। इसलिए जो अब पुल बन रहा है वो जल्दी से जल्दी बनना चाहिए, जिससे हमारी पढ़ाई भी ना ख़राब हो, और जो यहाँ से लोग आते जाते हैं वो भी उनको भी यहाँ से मदद मिले, भी जो काम जाते हैं उनका काम ना रुके और हमारी पढ़ाई भी ख़राब ना हो। खतरा भी रहता है? खतरा भी बहुत रहता है, जब नाली टूट जाती है तो खतरा तो है ही। आसपास के खेतों में भी जो खेती लगी होती है वो भी ख़राब हो जाती है, फसल सारी ख़राब हो जाती है और बहुत नुकसान हो जाता है किसानों का। तो बेहद है जिन्हें पिंड है कराड़कोट, नागो, बुढ़ापाना, लीका ਜਾਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬੁਰਵਾਲੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ सहूलियत है ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜੇ ਬੁੱਢਾਪਾਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ कराड़कोट ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲੀਅਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਪੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਣਗੇ। कितनी दिक्कत होगी इसी पुल को? ਦਿੱਕਤ ਤੇ ਬੇਹੱਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਏ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾਏ, ਦੇ ਐਤਕੀ ਵੀ ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਇਆ, ਪੈਪਾਂ ਮੁਗਾਈਆਂ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਰੁੜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਸੇ ਪਈਆਂ, ਪੁਲ ਫਿਰ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ। ਦਿੱਕਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਦੋਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੰਘਣਾ ਵੇਲੇ ਕੁ ਵੇਲੇ ਆਉਣਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬੇੜੀ ਵਾਲਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਕੁ ਵੇਲੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਰੀਆ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਿੰਡ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 10-12 ਤੇ ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ, ਇੱਧਰ ਬਰਵਾਲੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਭਰੋਖਾ ਦੜਬੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ? ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ ਬੇਹੱਦੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੰਘਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਟੱਪਦੇ ਆ, ਅੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਲਵਾਰਾਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਤੋਂ, ਦੇਖੋ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕਰਨ ਕੀ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਪੁਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਇਹ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ है। मेरी बात सुनो, ये सनवाड़ से दिक्कत है हमारे को। पहली बात तो मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूँ, आपने 8-10 सालों से बहुत इसकी मान लो भी यहाँ आके आम पब्लिक से मान लो पूछा, इसका ऊपर तक आवाज़ उठाई। उस आवाज़ उठाने से हमारे को सरकार ने बड़ा मान लो भी हमारी सुनाई करी, और जो महकमा है घग्गर डिवीज़न उसने हमारा बहुत हेल्प करी है। और मेरी बात सुनो, बुढ़ापाना से फरमाई 10 मतलब 7-8 मिनट का रास्ता है, और ऊपर से जाते हैं तो हरियाणा रोडवेज बस है 35 किलोमीटर गांव में घूम कर जाती है। फिर एक कारण हो रहा है, ये आज ये बीजेपी जो है जो कहती है भी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सरकार का नारा है, तो हमारी बच्चियाँ हैं वो 10वीं तक का स्कूल है वो घर बैठ जाती है, उसके बाद उनकी पढ़ाई ख़राब होती है। ये जो फरमाई है यहाँ से सारा 1.5 किलोमीटर है, +2 का स्कूल है, जो यहाँ से बरनाला रोड है वो 1 किलोमीटर है, और जो अंसार बाईपास है वो 7 किलोमीटर है, कोर्ट है, स्टेडियम है, और मेरी बात सुनो लड़कियों का कॉलेज है, वो 7-8 किलोमीटर है सारा जी। और जे अंसार जाना हो, ट्रेन पकड़नी हो, 20 गांव का रास्ता इधर पड़ता है, 15 इधर फरमाई है, 20 गांव इससे तो मान लीजिए लोग जुड़ जाएगा जी। सन वास्ट्री नाव चल रही है, सन वास्ट्री जो हमारा गांव था, पिछड़ा हुआ था गांव था ये।
तो घग्गर नदी के साथ साथ कितने गांव ऐसे हैं जो पुल ना बनने से इफेक्टेड है? ये जी 30-35 गाँव है, 15 इस तरफ है, फरमाई कलां से पड़ते हैं, जो रिश्तेदारियां और है। इधर से जो जाता है चंडीगढ़ जाना हो तो बरनाला रोड है, मान लो चंडीगढ़ तो अपनी हरियाणा की राजधानी है, तो काम तो पड़ता ही रहता है। तो लंबा सफर भी तय करना पड़ता है? लंबा तो ये सारा 15 मिनटों का ऊपर का जाना पड़ता है, 30-40 किलोमीटर पड़ जाता है। तो ये बेड़ी से जाते हैं तो जान का जोखिम भी होता है? तो जोखिम तो ही है जी, भरी न्याव है इसके। मान लो देखो, ये मान लो हवा चलती है, डोलती है, पर परमात्मा का शुक्र अब तक नुकसान नहीं हुआ, पर खतरा तो रहता ही है जी, खतरा तो रहता ही है। तो पुल बनने से राहत मिलेगी? सब कुछ जी, मैं तो कहता हूँ ये तो रोग ही काट दिया हमारा जी। ये पुल बन गया तो मान लो मैं तो जिंदगी सफल हो जाएगी। और पहला इसके शिक्षा के बारे में तो नहीं, मान लो पिछड़ा हुआ था शिक्षा में, तो पहली बार मान लो शिक्षा हो गया, सब कुछ हो गया हमारे लिए। बच्चियाँ रह जाती है, बच्चे नहीं पढ़ पाते। और दूसरी बात ये है, जो पुल है हम तो धन्यवाद करते हैं। मान लो भी SC साहब का करते हैं, बामू थी पहले, अब तो मेरा ट्रांसफ़र होगी, ये एक्शन था हुड्डा, उसके करते हैं। SD में करते हैं, ऊपर चीफ ने हमारी सुनाई की। BJP सरकार है, कोई मैंने चक्कर नहीं लगाने पड़े, एक और प्रस्ताव डाला, उन्होंने पास कर दिया। हम तो धन्यवाद करते हैं, सरकार का धन्यवाद करते हैं। इससे खुशी और हमारे को क्या होगी? सबसे बड़ी खुशी है जी ये तो, इससे ज़्यादा और क्या खुशी होगी मेरे को बताओ बात है। बाकी मेरे सुनो, जो आया जिसने काम किया, ऐसी बात नहीं। पहला जो जमाना उसने काम किया, अब सरकार है, सरकार बना रही है। नैब सिंह सैनी है, खट्टर है, उन्होंने काम किया है, ये बना रहा है। ये देखो बड़े बड़े पिलर निकल रहे हैं, ये देखो, ये 1.5-2 महीने में ये जी, ये पानी है, ये निकल जाएगा, 1 साल में तैयार हो जाएगा पुल। ये तो 1.5 महीने बरसाती है, वो टप जाएगा, फिर पुल बन जाएगा। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਧਰ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ 13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਵਾਇਆ ਖੈਰੇਕਾਂ ਹੋ ਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਸਿਰਫ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ। ਸੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜੂਗਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਖ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲੜਕੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪੁਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਪਦਾ ਆਰਾਮਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਵਧੀਆ। 10-12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਾਲਜ ਉਰੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਤੇ JCD ਜਾਂ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਪੀਠ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ? ਇੱਥੋਂ ਲਗਭਗ 20-25 ਪਿੰਡ ਹੋ ਗਏ। 20-25 ਪਿੰਡ, ਬੱਪਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਗੋ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਰਾੜਕੋਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰੇ ਅਲੀਕਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਮੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾफ़ी ਪਿੰਡ ਹੋ गए। तो गांव के लोगों ने क्या सरकार के सामने कोई मांग रखी थी? हाँ, ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਵੀ ਸੀ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਇਹ। तो ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਚਲੋ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਹੁਣ ਬਣਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ BJP ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ठीक, राहत मिलेगी? ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂਗੀ ਜੀ, ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਸਾ ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਜਾਇਆ ਜਾਊ, 5 ਮਿੰਟਾਂ ਸਰਸੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। तो पुल नहीं होने की वजह से लंबा सफर तय करना? ਹਾਂ 27 ਉਹ ਹੈਗਾ 21-22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਆ ਦੂਜਾ ਨਾ ਖੈਰੇ ਕਾ ਵਾਇਆ ਹੋ ਕੇ 21-22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਸਿਰਫ ਹੀ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਪੈਂਦਾ। तो किश्ती से दूसरे गांव में जाते हैं तो जान का खतरा भी बनता है? ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰਫੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੇੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੱਪਣਾ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। तो आसान होगा? है जी, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੁਲ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਟੱਪ ਜਾਣਾ, ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। तो गग्गर नदी है वो सिरसा से प्रवेश करती है, तो इसके एक तरफ जो गांव पड़ता है बुड्ढा भाना, और दूसरी तरफ फरमाई कलंग और फरमाई खुर्द गांव पड़ते हैं। दोनों तरफ के गांव की जो आपस में रिश्तेदारियां हैं। और दूसरा क्या है कि जो बुड्ढा भाना गांव है वो एक तरफ से डबाली रोड को टच करता है, दूसरी तरफ से बरनाला रोड को। तो बरनाला रोड के बीच में ये नदी आ जाती है, और इस वजह से जो है लोगों को नदी पार करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। और ये सन 1962 से नाव चल रही है। लंबे समय से लोग मांग कर रहे थे कि पुल बन जाए, तो लगभग पंजाब जो है का रास्ता जो है, यहाँ से बरनाला रोड लगभग 5 मिनट की डिस्टेंस पे आ जाता है, और सिरसा जो है वो 7 किलोमीटर, दूसरी साइड से 35 किलोमीटर सिरसा का सफ़र पड़ता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि नदी के दूसरे छोर पर जो गांव हैं, जैसे संगरसादा गांव है, वहाँ डेरा बाबा भुम्मन शाह है, लोगों की आस्था है। सिकंदरपुर में राधा स्वामी सत्संगर ब्यास है, तो वहाँ लोगों की आस्था है, तो जाते हैं तो उनको पहले सिरसा जाना पड़ता है 35 किलोमीटर, फिर वो जो है वो संगर और सिकंदरपुर गांव में जाते हैं। और इस पुल के बनने से लगभग रंगा से लेके और बुड्ढा बाणा, मल्लेवाड़ा, किराड़कोट, नागो की, रंगा, मत्तड़, मलड़ी, थिराज, भीमा, पंजमाड़ा, मुसाबाड़ा, पनियारी, फरमाई, लगभग 35 गांव को लाभ मिलेगा। तो बच्चों की जो पढ़ाई थी वो भी प्रभावित हुई? उस वजह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती थी, क्योंकि देखिए गांव में 8वीं तक का स्कूल है, 10वीं का स्कूल जो है वो नज़दीक में किराड़कोट है, तो 12वीं का स्कूल जो है वो दूर पड़ता है, बप्पा गांव में पड़ता है, नागोकी में है, नेजाडेला में है। तो उस वजह से जो परिवहन के साधन है, बसेज वगैरह की सुविधा भी बहुत कम है।
लेकिन जो फरमाई गांव है वो बरनाला रोड नेशनल हाईवे 703 नंबर पे बसा है, तो यहाँ बसों का आवागमन बहुत है और फरमाई में भी +2 का स्कूल है। तो ये पुल बनेगा तो निश्चित रूप से जो बच्चियाँ हैं, छात्राएं हैं, उनको काफ़ी लाभ मिलेगा, क्योंकि उनकी 10वीं के बाद की पढ़ाई जो है अक्सर छूट जाती थी। कितने समय से आप पुल की मांग कर रहे थे और 65-63 साल बाद आपका पुल बनना, क्या कहते हैं? ऐसा पुल की मांग तो बरसों से ही चली आ रही है, लेकिन जो पीछे जो है ग्रामीणों ने एफर्ट्स किए मिलजुल के, तो बीजेपी सरकार ने इस मांग को माना और समझा कि ये पुल बनना चाहिए और लगभग 8 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से अब पुल का निर्माण शुरू हो गया है। उम्मीद है कि ये जल्दी पुल बन जाएगा और फिर नाव के जरिए जो जोखिम भरा सफ़र है उससे हमें निजात मिल जाएगी।